Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 4 of Indian banking system. In this session, we are going to talk about banking operations. Now, various topics to be covered in this session are introduction of Indian banking operations, classification of banks, what are the functions of commercial banks, what is credit creation, and finally, what are the functions of Reserve Bank of India. So, now let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स। जब भी हम बैंकिंग ऑपरेशंस की बात करते हैं बेसिकली हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि कितने तरीके के बैंक्स इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। दो जो बहुत कॉमन फॉर्म्स हैं बैंक की विच इज़ प्रिवलेंट इन इंडिया आर बेसिकली द पब्लिक बैंक एंड प्राइवेट बैंक। पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक दोनों ही कमर्शियल बैंक्स के अंदर आते हैं। सो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। Commercial banks are those profit-seeking institutions which accept deposits from general public and advance money to individuals like household, entrepreneurs, businessmen and etc. So basically commercial banks वो profit-seeking institutions हैं, वो organization है जिन्हें का main motive profit earn करना है by accepting the deposit from all those people who have surplus and giving the loan to all those people who are in deficit of funds. सो दैट जो मेन ऑब्जेक्टिव है कमर्शियल बैंक का वो इफ़ेक्टिवली प्रॉफिट अर्न कर सके। नाउ प्रॉफिट इस केस में अर्न हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और कमीशन। यूजुअली बैंक क्या करता है, जिन सब लोगों के पास सरप्लस फंड्स होते हैं वो उसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, प्लस ऑल दोज पीपल जिन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बैंक से उसे लोन की फॉर्म में लेते हैं। नाउ इन बिटवीन बैंक को इसमें क्या फ़ायदा होता है, इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ डिपॉजिटिंग फंड्स इन दी बैंक उसे कुछ इंटरेस्ट बैंक पे करता है और जो लोन बैंक रेंडर कर रहा है एक डेफिसिट पर्सन को वहाँ से बैंक लोन चार्ज करता है। जो डिफरेंस होता है इन दोनों इंटरेस्ट में दैट इज़ द बेसिक इनकम ऑफ द बैंक्स। Now the various examples of commercial banks in India are Axis Bank, ICICI Bank, State Bank of India, HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank. Nowadays there are a lot of private players in banking sector. Now if we would like to classify the banks को हम basically two major heads में classify कर सकते हैं। First is the scheduled bank, other is non-scheduled bank. Now first of all what is scheduled banks? वो सारे बैंक जो second schedule of RBI Act 1934 के अंडर बने हैं, all these banks are called scheduled bank. So basically वो बैंक जो एक particular schedule एक particular act के अंडर बने हैं that is basically the scheduled bank. Now scheduled bank में basically 3 different banks होते हैं, public sector bank, private sector bank and foreign banks. देन द अदर कैटेगरी इज़ नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। वो सारे बैंक जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 के अंदर नहीं बने हैं, रेस्ट ऑफ ऑल दीज बैंक्स आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। Now this is the basic diagram which is showing the structure of Indian banking system. At the top we have banking system in India. It is classified on 2 different bases. First is the scheduled bank, other is non-scheduled bank. Scheduled bank में state cooperative banks आते हैं plus commercial banks आते हैं. Non-scheduled bank में central cooperative banks या फिर जितनी भी primary credit societies हैं वो सब include होती हैं। Now if we talk about commercial banks में basically 3 different types of banks include होते हैं। First is the public sector bank, then foreign banks and third is private sector banks. Now this public sector banks also include 2 different categories of banks. First is SBI, that is State Bank of India और जितने भी associates हैं SBI के, then other nationalized banks. So now let us try to understand all these banks in details. देन द फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। अगर हम कमर्शियल बैंक के फंक्शंस की बात करें तो बेसिकली इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी फंक्शन एज वेल एज सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन जो मेन बेसिक फंक्शन है बैंक्स का वो है accepting deposits, making advances and credit creations. But when we talk about the secondary functions, these are basically the clearance of checks, sale purchase of shares, bonds, then transfer of money, to work as trustee, to work as representative, to give accept money or to provide letter of credit. Now what are all these functions? Let us try to understand these functions in detail. First of all the primary functions. जो first foremost important function है commercial bank का that is accepting deposits. Now deposits
जो सारे लोग जिनके पास सरप्लस है फंड्स का, दे कैन डिपॉजिट देयर फंड्स इन द बैंक एंड बैंक विल बी एक्सेप्टिंग दोज डिपॉजिट्स. Now there are different kinds of deposits which you can do in the bank. First is the demand or current account deposits. A depositor can withdraw it in part or in full at any time he likes without notice. It carries no interest. बेसिकली जब हम करंट अकाउंट डिपॉजिट की बात करते हैं, करंट अकाउंट एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एक बैंक में ओपन करा सकती है. जो करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे डिपॉजिट या विड्रॉ किए जा सकते हैं, बट देयर इज़ नो इंटरेस्ट पेबल बाय द बैंक इन केस ऑफ करंट अकाउंट डिपॉजिट्स. देन वी हैव फिक्स्ड डिपॉजिट्स. नाउ फिक्स्ड डिपॉजिट्स बेसिकली जब एक पर्टिकुलर कस्टमर बैंक में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपने फंड्स रखता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट. नाउ दे आर फिक्स्ड बिकॉज यू कैन नॉट विड्रॉ देम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 ईयर के लिए फिक्स डिपॉजिट कराया है ऑफ ₹1,00,000, सो बिफोर दैट expiry of that 1 year you cannot withdraw that 1,00,000 rupees. And if still in case of any emergency if you want to withdraw that, in that case you are supposed to pay some charges for it. Some amount will be deducted from your deposits. फिक्स डिपॉजिट के केस में बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देता है. देन वी हैव सेविंग्स डिपॉजिट. सेविंग्स डिपॉजिट इट इज़ दी फॉर पर्पज ऑफ स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स बाय सैलरीड पीपल. नाउ बेसिकली सेविंग डिपॉजिट यूजुअली वो लोग करते हैं जिनका बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, जिनकी स्मॉल सेविंग्स जिन्होंने करनी है आउट ऑफ द पोर्शन ऑफ द सैलरी, they can deposit that particular portion in the savings account. इस savings account में भी बैंक standardized rate of interest pay करता है. This is right now it is more or less 4%. Then the other primary function of bank is advancing loans. First is the overdraft facility and then loans by creating deposits. Now first of all, overdraft facility. Now this facility is provided to the businessman only if the deposits are less, the transaction can be done. Bank charge interest on this facility. नाउ हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. लेट से देयर इज़ अ पर्सन जिन्होंने 10,000 का किसी को चेक इशू करना है, बट उनके अकाउंट में राइट नाउ देयर आर ओनली 6,000 रुपीज़. नाउ व्हाट ही कैन डू, ही कैन गो टू एनी ऑफ द बैंक्स इन विच ही हैव्स अकाउंट. वहाँ पे दे कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट. नाउ व्हाट इज़ द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं जितने आपको यूटिलाइज़ करने हैं, सपोज आपने अगर 10,000 का चेक काटना है और खाली 6,000 है, उस केस में जो एक्सेस ऑफ 4,000 है उसके लिए आपको एक बैंक फैसिलिटी दे सकता है. दैट फैसिलिटी इज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट बेसिकली मीन्स जितना अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं है उससे ज़्यादा अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. नाउ द बेसिक एडवांटेज टू द कस्टमर इज़ कि उन्हें थोड़ी एक लिक्विडिटी मिल जाती है. दो दे डोंट हैव द फंड्स, स्टिल दे कैन डू द ट्रांजेक्शन्स. वेयर एज अगर हम बैंक की बात करते हैं, बैंक विल बी चार्जिंग सम इंटरेस्ट ऑन दिस फैसिलिटी, तो दैट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक. Then the other kind of loan could be the loan by creating deposits. Now it could be the cash credit, demand loans or short term loans. Now first of all, what is cash credit? If suppose there is a person who walks into the bank and he or she is looking for a particular sort of loan, उस पर्टिकुलर लोन के लिए दे कैन अप्लाई इन टू द बैंक. नाउ इट विल डिपेंड अपॉन द कस्टमर कि उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उनकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, एंड अकॉर्डिंगली उनको लोन जो है बैंक से मिल सकता है. नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट टू द कस्टमर एंड द बैंक. द बेसिक बेनिफिट टू द कस्टमर इज़ कि उन्हें लिक्विडिटी मिल जाती है. उनके पास अभी राइट नाउ फंड्स नहीं है, बट स्टिल ही कैन यूटिलाइज द फंड्स. एंड द बेनिफिट टू द बैंक इज़ कि बैंक विल बी चार्जिंग द पर्टिकुलर इंटरेस्ट by the customers. Then there are some short term loans as well. Usually जो loans होते हैं they are of long term, but there are certain type of, कर दिया मैंने पॉज, बोलो. But there are some sort of short term loans as well. If suppose there is a person जिन्होंने बिल्कुल short duration के लिए maybe for some months अगर लोन लेना है, even that facility can be availed by banks. Now the most important function of any of the bank is the credit creation. Now what is credit creation? The tendency of commercial banks to make loans several times of the excess cash reserve kept by the bank is called creation of credit. क्रेडिट क्रिएशन बेसिकली जितने भी फंड्स बैंक के पास पड़े हैं, बैंक विल नॉट बी कीपिंग दैट फंड्स आइडल, राइट. सो उन्हें वो फंड्स को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा.
दैट फंड्स विल बी इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग. लोन्स दे सकते हैं बैंक उन आउट ऑफ दैट एक्सेस कैश रिजर्व्स. तो जितनी बार ये डिफरेंट डिफरेंट लोन्स बैंक देते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. Creation of credit means that the commercial banks, by taking in deposits and making loans, expand the money supply. बैंक जिस तरीके से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स ग्रांट करते हैं, दिस इज़ बेसिकली एक्सपैंडिंग दी मनी सप्लाई. इकॉनमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट क्रिएशन इज द मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ बैंक डिमांड डिपॉजिट. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन? First of all, the process of credit creation begins with the bank lending money out of the primary deposits. Primary deposits are those deposits which are deposited in the banks. यूजुअली जो भी कस्टमर्स बैंक में डिपॉजिट करते हैं फंड्स को, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द प्राइमरी डिपॉजिट्स. सो प्राइमरी डिपॉजिट्स में से जो पोर्शन एक बैंक लेंड कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. In fact, banks cannot lend the entire primary deposit as they are required to maintain the certain proportion of primary deposit in the form of reserves with RBI under RBI and Banking Regulations Act. So basically, अगर if suppose टोटल जो रिजर्व है बैंक का, जितने प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, इफ़ सपोज इट इज़ 1 करोड़ रुपीज़, सो वो पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपीज़ बैंक लोन की तरह लेंड नहीं कर सकता, बिकॉज RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम कीप ऑन रिवाइजिंग द परसेंटेजेस ऑफ द रिजर्व्स जो एक बैंक को RBI के साथ मेंटेन करना पड़ता है. वो अब रिजर्व कहाँ से, अमाउंट कहाँ से आएगा रिजर्व का, वो भी इन्हीं प्राइमरी डिपॉजिट्स में से आएगा. सो 100% प्राइमरी डिपॉजिट कैन नॉट बी lended in the form of loans. Now, what is the process of credit creation? Let's have a look on this diagram. This is the basic example how credit is created. Now, on the left hand side extreme top, there is one bank M, then bank N and then bank O. Now, what bank M is doing? बैंक एम में एक पर्टिकुलर कस्टमर ने $2,000 डिपॉजिट किए. नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड कि पूरा का पूरा अमाउंट जो है लोन की तरह ग्रांट नहीं कर सकता बैंक, दैट इज़ वाई $200 बैंक ने अपने वॉल्ट में सेफ रख दिए, प्लस जो 1800 लेफ्ट आउट डॉलर्स थे उनको उन्होंने लोन की फॉर्म में एक स्टूडेंट को दे दिया. नाउ दिस स्टूडेंट विल स्पेंड दिस $1800 इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या एनी ऑफ द वेंचर वेयर ही और शी वांट्स टू स्पेंड इट. देन जो $1800 स्पेंड किए स्टूडेंट ने, उस ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो फंड्स मिले हैं, अगेन दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिपॉजिटिंग दैट अमाउंट इन पर्टिकुलर बैंक. नाउ सपोज अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बैंक एन में है, सो दैट बैंक एन विल गेट $1800. अगेन $1800 पूरे के पूरे लोन की तरह बैंक एन नहीं दे सकता. दे विल कीप $180 विद देमसेल्फ एंड देन अगेन लोन $1620 जितना बच गया, अगेन दे विल बी लेंडिंग इट टू स्टूडेंट 2. अगेन स्टूडेंट 2 विल स्पेंड इट, it will be deposited in bank O, and finally this cycle will keep on continuing. This is the basic process of credit creation. Though इनिशियली खाली $2000 ही थे, बट जो यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई. दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. नाउ व्हाट आर द वेरियस assumptions in case of credit creation? First, it adjusts the assets balance between the deposit liabilities and the cash reserve. Now, what is the cash ratio? Cash ratio in case of credit creation, it remains the same. कैश रिजर्व रेशो बेसिकली वो कितना परसेंटेज है जो बैंक अपने पास रिटेन करता है अपने वॉल्ट में. जैसे हमने जो एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया है, यहाँ पे 10% एवरी टाइम बैंक इज कीपिंग विद देमसेल्फ. जैसे इनिशियली $2000 थे, सो 200 वॉल्ट में रखे गए, 1800 थे सो 180 वॉल्ट में रखे गए, 1620 थे तो 162 वॉल्ट में रखे गए. सो दिस इज बेसिकली द 10%. देन नो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल बैंक इज देयर इन केस ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन. Now, but there are some limitations in the process of credit creation. First is the cash drain. It is quite possible कि जोन सी ऑर्गेनाइजेशन में आपने फंड्स डिपॉजिट किए हैं वो एक पर्टिकुलर बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रही, रादर दे आर स्पेंडिंग इट समवेयर एल्स. सो जो कैश है वो उस फ्लो से ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है. देन ट्रांसफ़र ऑफ डिपॉजिट्स टू नॉन बैंक फिनेंशियल्स. जितने भी डिपॉजिट हैं पर्टिकुलर बैंक के, इफ़ सपोज दोज डिपॉजिट्स आर ट्रांसफर टू नॉन बैंक फाइनेंशियल्स, यहाँ पे तो हम सिर्फ
3 डिफरेंट बैंक्स को कंसीडर कर रहे थे, बट सपोज अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने बैंक में फंड्स ना डिपॉजिट करके किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिपॉजिट कर दिए या फिर अपने पर्सनल यूसेज के लिए अपने घर पे रख लिए, इन दैट केस दैट फंड विल बी विड्रॉन फ्रॉम दैट फ्लो ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. Then willingness to borrow, maybe sometimes persons are not having that willingness to borrow from someone, and then different types of loan are also there. So if there are different types of loan, so we cannot say कि इतने टाइम बाद लोन रिकवर हो जाएगा बैंक को. Then comes the Reserve Bank of India. Well, Reserve Bank of India is a central bank in Indian banking system. It is basically the regulatory authority of Indian banking systems. Now, Reserve Bank of India was established in 1st of April 1935 under RBI Act 1934. So, it was established as a shareholders bank with the paid up capital of rupees 5 crores. बेसिकली आरबीआई जो था इट केम इनटू द पिक्चर इन 1935, दो आरबीआई एक्ट 1934 में ही इस्टेब्लिश हो गई थी. इनिशियली जब आरबीआई बैंक बना, जो टोटल पेड अप कैपिटल थी आरबीआई की वो सिर्फ 5 करोड़ रुपीस थी. 100 रुपीज़ ईच के शेयर्स थे, सो इट मेक्स 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच. जो ओनरशिप थी बैंक की, it was later transferred to the central government in 1949. तो initially जो RBI था it was not under the control of central government. Now the preamble of RBI Act 1934. RBI Act की अगर हम बात करते हैं, सो जो बेसिक प्रियम्बल है आरबीआई एक्ट का, जो बेसिक गोल है वो बताता है दैट टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड द कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद द व्यू to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of country to its advantages. Now as you can see on this slide, जितने भी words italics में दिए हुए हैं, all these things are the main focus of RBI. Now first is to regulate. अब RBI क्या regulate करेगा? RBI will be regulating the issuance of the currencies in an economy. Apart from few denominations of the currency, जितनी भी करेंसी इशुएंस होती है वो सब आरबीआई ही देखता है. देन सिक्योरिंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी, एक इकोनॉमी में ओवरऑल कितनी स्टेबिलिटी है, मॉनेटरी कितनी स्टेबिलिटी हो सकती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय आरबीआई. एंड देन फाइनली करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम जो है उनको भी ऑपरेट करता है आरबीआई. जैसे अभी हमने क्रेडिट क्रिएशन की बात की, तो इकॉनमी में ओवरऑल क्रेडिट सिस्टम किस तरीके का है, फॉरेन करेंसीज कितनी कंट्री में रिजर्व्स मेंटेन होने चाहिए, कैसे फॉरेन करेंसी की डीलिंग हो रही है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द बेसिक स्कोप ऑफ आरबीआई एक्ट. Now, what are the various functions of Reserve Bank of India? Now, the function imposes on the bank are first the operating monetary policies. Monetary policies basically जैसे फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, दीज आर बेसिकली दोज पॉलिसीज जिनसे आरबीआई इकोनॉमी में ओवरऑल कंट्रोल इंश्योर कर सकता है. नाउ ऑपरेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड इंश्योर एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस. देन वी हैव प्रमोशन ऑफ एन एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम. नाउ आरबीआई का जो सेकेंड फंक्शन है, द मोर फोरमोस्ट फंक्शन इज़ कि एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से हो सकता है इंडिया में. इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम. सो आरबीआई इंश्योर्स ऑल दोज थिंग्स जिसकी वजह से एक एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम इंश्योर हो सकता है. देन एक पर्टिकुलर कंट्री की कितनी करेंसी रिक्वायरमेंट है, फॉरेन करेंसीज कितनी चाहिए, इन हाउस कितनी, एक पर्टिकुलर कंट्री में कितनी करेंसी की इशुएंस होनी चाहिए, ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Then what are various major functions of Reserve Bank of India? The main function of RBI are broadly the same as those of the central banks world over. All over world जितने भी central banks हैं उनके function and RBI के function they are more or less same. Now it has taken over the central banking functions carried out by the erstwhile imperial bank like banker to the government and bankers bank. So basically जो इनिशियली जैसे हमने सेशन स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि किस तरीके से फाइनली आरबीआई केम इनटू द पिक्चर, इम्पीरियल बैंक वाज देयर बिफोर आरबीआई. जो सारे फंक्शंस इम्पीरियल बैंक करता था वही सारे फंक्शंस लेटर ऑन आरबीआई स्टार्टेड डूइंग. फॉर एग्जांपल इम्पीरियल बैंक वाज द बैंकर टू द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट को कभी भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती थी दे यूज टू टेक इट फ्रॉम इम्पीरियल बैंक. इट इज़ सेम इन द केस ऑफ आरबीआई.
Now, the first function of RBI is note issuing authority or the currency authority. As we have discussed, करेंसी की जितनी भी इशुएंस होती है इकोनॉमी में, अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 डिनोमिनेशंस, ऑल ऑफ दीज इशुएंस आर टेकन केयर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. देन इट इज़ बैंकर टू दी बैंक्स. इफ़ सपोज जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, हमने जो भी डिस्कस किए सेशन की स्टार्टिंग में, अगर इन किसी भी बैंक को किसी भी फंड की ज़रूरत है, सो दे कैन बोरो दैट फंड्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो इन दैट केस RBI इज़ अ बैंकर टू all of these banks. Then it is also banker to the government. अगर गवर्नमेंट में कुछ भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इवन इन दैट केस द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कैन टेक लोन्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दैट इज़ वाई इट इज़ अ बैंकर टू दी गवर्नमेंट. देन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. एक पर्टिकुलर इकॉनमी में कितनी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स मेंटेन करने हैं, किस तरीके से डीलिंग हो सकती है फॉरेन एक्सचेंज की, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Then monetary management to promote the growth of economy and maintaining the price stability. Now RBI can take a lot of steps, like they can go for monetary policies, fiscal policies, जिससे overall economy में price stability हो सके. Then control and supervisions over banking systems to channelize the bank credit for the productive purpose and safeguard the depositors' interest. जैसे हमने सेशन के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था दैट बैंक्स आर बेसिकली क्रिएटिंग द क्रेडिट इन द इकोनॉमी. सो RBI कैन इंश्योर दिस थिंग कि प्रॉपर क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, जितने हम रिजर्व्स मेंटेन करते हैं. जैसे हमने स्टार्टिंग में कैश रिजर्व रेशो की बात की थी, सो RBI विल बी डिसाइडिंग कि कितना कैश रिजर्व रेशो एक पर्टिकुलर बैंक को RBI के साथ मेंटेन करना पड़ेगा. Then Reserve Bank as currency authority. Now Reserve Bank is the only authority in India which can issue the currencies. 1 rupee coins and notes and other coins are issued by RBI on behalf of the government. Now RBI की जो main responsibility है, it is to put that currency into circulation as well. RBI का खाली यही काम नहीं है कि उनको करेंसी को इशू करना है, रादर उन्हें सर्कुलेट भी करना है सो दैट देयर इज़ प्रॉपर मॉनेटरी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी. जितनी भी हमारी करेंसी है, देयर इज़ प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ द करेंसीज. Then all the transactions related to the issue of currency notes are carried out by the issue department, which is separate from other departments for accounting purposes. So Reserve Bank of India में there is a separate department जो issuance केस से रिलेटेड काम सारे देखता है. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न सो दैट देयर कैन बी दी ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. Then Reserve Bank as currency authority, there are various assets and liabilities of the issue department. जैसे हमने अभी डिस्कस किया, RBI में डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो इशुएंस ऑफ करेंसी को देखता है. नाउ व्हाट आर द वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ दैट इशुएंस डिपार्टमेंट. अगर हम एसेट्स का जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज़ बेसिकली द रिसोर्सेज ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म. सो RBI के क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं इन केस ऑफ इशुएंस डिपार्टमेंट. इट कुड बी द गोल्ड कॉइन, इट कुड बी द फॉरेन सिक्योरिटीज, it could be the rupee coin, government of India rupee securities. All of these things will be the assets for the issuance department. Then what are the liabilities of issuance department? Now liabilities का basic meaning ये होता है कि क्या obligations है एक particular firm की. So if we talk about RBI का जो issuance department है उसकी liabilities क्या क्या हो सकती हैं. The first is the total liability of the issue department is the total notes issued, that is note in circulation and notes held in the banking department. All these things are the liability for RBI. Then RBI is also a banker to the banks. First of all, it maintains the balances of scheduled bank and deposits of non-scheduled and cooperative banks. Basically जितने भी non-scheduled banks हैं, cooperative banks हैं या फिर scheduled banks हैं, इन सब का कुछ बैलेंस जो है RBI के साथ मेंटेन रहता है. If suppose in any of these banks अगर किसी भी तरीके की फंड्स की रिक्वायरमेंट है, they can borrow that funds from this Reserve Bank of India. So that is why it is a banker to banks. Then rediscounting of eligible bills. Now when banks are trading, they get a lot of bills. For example, for granting of loans or advances के cases में there are a lot of bills which are involved. Now if suppose एक particular bank को cash की ज़रूरत है, what they can do, they can get that bill rediscounted by Reserve Bank of India. Now जो ये rediscounting की फैसिलिटी है, इट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू शेड्यूल्ड बैंक्स, रादर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी ये फैसिलिटी RBI देता है.
Now all of these above functions are carried out by the deposit account department at various offices. जैसे हमने अभी देखा था कि इशुएंस के जितने भी काम थे वो इशुएंस डिपार्टमेंट में होते हैं, ऐसे ही अगर इफ RBI इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ बैंकर टू द बैंक्स, ये सारे जो फंक्शंस है इट इज़ बीइंग डन इन द डिपॉजिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट. Reserve Bank of India is the banker to the central government and to the state government by the virtue of the agreement. So there is a specific agreement जिसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अगर किसी भी टाइप के फंड्स की ज़रूरत है, अगर कोई भी लोन चाहिए, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मोर ओवर RBI जो है इट प्रोवाइड्स द फुल रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट. जो भी सारे प्रोडक्ट्स अगर हमें नॉर्मल कमर्शियल बैंक से मिलते हैं, ऑल दोज फैसिलिटीज़ लाइक अगर हमें चेक इशू करवाने हैं, फंड ट्रांसफ़र कराने हैं, all these kinds of functions will be enjoyed by central and state government with the help of Reserve Bank of India. ये सारे functions central and state government को RBI के थ्रू अवेल करने पड़ेंगे. Now, a large number of branches of agency, banks and treasury agencies also undertake government business on behalf of RBI. अब कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो RBI की जगह कुछ गवर्नमेंट एजेंसी, ट्रेजरी एजेंसीज हैं वो लेती करती हैं. गवर्नमेंट रेवेन्यू जितना भी कलेक्ट होता है थ्रू ऑल ऑफ दीज एजेंसीज वो RBI को डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. Then banker to the government. The next function of Reserve Bank of India is that it is also a banker to the government. Now first of all, the very important thing in this regard is the public debt. Reserve Bank manages the public debt and issues the new loans on behalf of the central and the state government. Now the administration, अगर हम public debt की बात करते हैं, it is being done by the RBI itself. जितने भी retired personals होते हैं from higher authorities in the financial institutions, they can take care of these public debt department. Then the management of foreign exchange. एक जैसे हम यूजुअली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं दैट रुपीज़ की आज ये वैल्यू हो गई, डॉलर की इतनी वैल्यू है. बेसिकली हाउ टू मेंटेन दैट वैल्यू ऑफ रुपी इज़ द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कितनी इन एडुकेसी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, या फिर ऐसा तो नहीं है हमने ओवर मेंटेन किया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इवन दैट थिंग इज़ द मेन कंसर्न ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Now exchange management की जब हम बात करते हैं, it is very complicated process. Why? Because a lot of countries currencies will be involved. It is very complex because currency की जो value है it is not stable. It will keep on fluctuating day by day. So a lot of care has to be taken by Reserve Bank of India to manage the foreign exchange. Then monetary management. Now to facilitate the flow of an adequate volume of bank credit to the industry, agriculture and trade to meet their genuine need for the overall growth of the economies. So basically RBI जो है it also extends the bank credit to various industries. For example, India being an agricultural industry, अगर किसी भी तरीके की क्रेडिट की ज़रूरत है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, that can be provided with the help of Reserve Bank of India. अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर से डील करना हो, इवन दैट विल बी डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड टू इंश्योर दैट द क्रेडिट इज़ नॉट डाइवर्टेड फॉर अनडिज़ायरेबल पर्पसेस. ऐसा तो नहीं है कि किसी गलत पर्पस की वजह से क्रेडिट दिया जा रहा है. इवन RBI विल कीप अ ट्रैक ऑफ दिस थिंग. Then what are the various instruments जिसकी हेल्प से RBI can control all of these things? First is the bank rate, then reserve requirements. जैसे हमने स्टार्टिंग में कैश रिजर्व रेशो की बात की थी, ऐसे इन सेम वे वी हैव SLR, that is basically the statutory liquidity ratio. Then they can go for OMOs, that is open market operations, and then interest rate policies. Now, what are the various developmental functions of Reserve Bank of India? When we talk about the developmental functions, these are basically agriculture या रूरल इंडस्ट्री का या रूरल सेक्टर की डेवलपमेंट करना, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करना, या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री में एक्सपोर्ट डेवलप करना. कंट्री लाइक इंडिया यहाँ पर अगर हाउसिंग डेवलपमेंट की अगर फैसिलिटी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में कुछ डेवलपमेंट करनी है, या फिर जितने भी फाइनेंशियल मार्केट में कंपोनेंट्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, उन सब की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल. ऑल आर दीज दी डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ RBI. Then regulation and supervision over the banking system. RBI, it is the main regulatory authority in case of Indian banking system. तो ऐसे कौन से functions बैंक को RBI को perform करने पड़ते हैं so that they can supervise the Indian banking system? First of all is the licensing of the banks. अगर किसी भी बैंक ने इंडिया में
ऑपरेशन शुरू करने हैं, दे हैज़ टू ऑब्टेन द लाइसेंस ऑफ बैंकिंग प्लस द ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसीज. देन दे नीड टू मेंटेन CRR, SLR, liquid assets. Then inspections of the bank will also be undertaken by RBIs. Then there are various control methods which can be used by RBI. मैनेजमेंट के कंट्रोल के लिए भी RBI की स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं. देन देर इज़ अ सुपरविजन ऑफ ऑल ऑफ दीज शेड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड बैंक्स by RBI in terms of their liquidation. देन दे आर वेरियस रेगुलेशन जिनकी हेल्प से कंट्रोल किया जा सकता है प्लस डायरेक्शन दे सकते हैं एक पर्टिकुलर मॉनेटरी सिस्टम को. देन दी सुपरविजन इज RBI विल सुपरवाइज कि जितने भी लीगल फ्रेमवर्क दिए गए हैं पर्टिकुलरली बैंकिंग इंडस्ट्री के वो सारे बैंक्स में फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे. नाउ विदाउट सुपरविजन all regulatory measures could be useless, and in the same way without regulatory measures supervision cannot exist. So both of these things have to be in sync with each other. Then if we talk about the regulations, it could be formal as well as informal. Now formal regulations which has been laid down on papers, different guidelines, directive, targets या फिर जितने भी norms दिए गए हैं, all these things are the part of formal regulations. Then there are different types of informal regulations. Now informal regulations could be the अगर सपोज एग्रीमेंट्स कोई किए गए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे हो सकती है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है बैंक का, all of these things are the part of informal regulations. Then how to strengthen the supervisory mechanism. We have been discussing कि बैंक का सुपरवाइजरी रोल है, बट हाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन स्ट्रेंथन दिस सुपरवाइजरी रोल. फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन डू द बैंकिंग सुपरविजन. देयर इज one organization called BFS. BFS is basically Board for Financial Supervision. BFS की help से RBI can keep a check over the functioning of different banks. They have various on-site inspections, off-site monitorings, periodical auditing होती रहती है. Then extensive use of ITs are also there to ensure the proper supervision. Nowadays every transaction of the bank are extremely transparent. Then we have Basel's committee, we have core principles for effective supervisions. Then we have detailed guidelines for risk management, operational risk, market risk, so that there could be a strengthened supervisory mechanism. Then in case of non-banking supervision, for example अगर हम NBFCs की बात करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनकी सुपरविजन का काम भी RBI के अंडर आता है. वेरियस एक्टिविटीज़ विच आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय NBFCs, जितने असेट डिपॉजिट्स दिए जाते हैं NBFCs के थ्रू, इन सब की मॉनिटरिंग भी RBI करता है. नाउ देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस. फर्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एंड सेकेंड, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ RBI. दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन. थैंक यू.